Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 9, welcome to your biology class. As you know that we have completed chapter number 1, Introduction to Biology. So in this lecture, I am going to complete multiple choice question of chapter number 1, Introduction to Biology on page number 17. So let's start with the first MCQ. Number 1. Members of the same species living in the same place at the same time make a एक ही स्पीशीज़ यानी एक ही किस्म से ताल्लुक़ रखने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के तमाम मेंबर्स जो कि किसी एक ही जगह पर सेम प्लेस मतलब एक ही जगह पर एक ही टाइम पर एक ही वक्त पर रहते हों क्या बनाते हैं मेक अ क्या बनाते हैं so you have four options A, B, C and D and the correct answer is actually they make a population वो आबादी बनाते हैं जिस तरह से human population. Number 2, if a scientist is studying the methods of inserting human insulin gene in bacteria, which branch of biology may this be? अगर एक साइंटिस्ट ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में इंसर्ट का मतलब होता है दाखिल करने इंसर्टिंग मीन दाखिल करने या उसको एंटरिंग का वर्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर एक ह्यूमन इंसुलिन जीन को बैक्टीरिया में दाखिल करने के तरीके को स्टडी कर रहा है तो वो एक्चुअली किस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी से के हवाले से ये पढ़ रहा है ये एक्सपेरिमेंटल अपना वर्क कर रहा है. So 4 options once again and the correct option is C. Why C? That is why biotechnology, because it is the latest profession in which actually different microorganisms are used in order to prepare different useful materials that are not only useful but also useful for mankind. So यहाँ पर उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी की आपकी एक सिग्निफिकेंस और एक डेफिनेशन बयान कर दी और एक एप्लीकेशन यहाँ पर बता दिया कि बैक्टीरिया में जब ह्यूमन इंसुलिन जीन को एंटर किया गया तो दिस इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ नॉर्मली यू कैन से अ मेडिसिन दैट इज़ यूज अगेंस्ट डायबिटिक पेशेंट्स. तो एक तरीके से जब कोई भी ऐसी फील्ड या ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम यूज़फुल जो मटेरियल्स होते हैं यूज़फुल सब्सटेंसेस जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं with the help of microorganisms or with the help of organisms तो हम उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को बायोटेक्नोलॉजी के नाम से मेमोराइज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी के नाम से याद रखते हैं. Now come to the next one, that is third one. Which one will be the correct sequence of the levels of organization of life? यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि इसमें से 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको लग रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस यानी अपनी दुरुस्त तरतीब में मौजूद है. सो द सी ऑप्शन इज़ करेक्ट इन विच वी कैन सी दैट स्टार्टिंग फ्रॉम मॉलिक्यूल व्हेन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म ऑर्गेनल्स टुगेदर फॉर्म सेल और सिमिलर सेल्स मेक टिश्यू and when different tissues combine to perform their specific function they form organ forms or different organs form organ system and मुख्तलिफ जैसे आप कहते हैं ना organ systems मिलके क्या बनाते हैं individual member बनाते हैं एक organism तैयार करते हैं. What is the meaning of individual organism? Number 4, which of these major bioelements is in the highest percentage in protoplasm? इनमें से कौन से 4 ऑप्शन आपको दिए हुए कौन सा मेजर कौन सा बायो एलिमेंट अपनी ज़्यादा मकदार में हाईएस्ट परसेंटेज यानी ज़्यादा फ़ीसद के लिहाज से प्रोटोप्लाज्म में मौजूद है. प्रोटोप्लाज्म मीन लिविंग मैटर ऑफ द सेल का जिंदा मादा. ओके सो विच इज़ द मेजर बायो एलिमेंट? सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ऑक्सीजन. हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म? अबाउट 65%. So it is present in the highest percentage in protoplasm inside the cell. Now come to the fifth
MCQ, and this fifth MCQ is based on which of the following group includes organism all of which are absorptive in their nutrition. Now students, there are different type of, you can say, method of feeding. Method of feeding means that we know that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis. So they have autotrophic mode of nutrition. They have autotrophic method of getting food or preparing their food. In the similar manner, there are some animals which cannot prepare their food, or there are majority of the animals which cannot prepare their food and get their food from other sources. So they are heterotrophic mode of nutrition. Now there is a third type of mode of nutrition in which animals or organisms get their food from their surrounding, and this mode of nutrition is called absorptive mode of nutrition. So it is basically included in the heterotrophic mode of nutrition, but not in such a manner that normally animals attack on different animals to get their prey. यानी जैसे एनिमल दूसरे एनिमल्स को शिकार करके खाते हैं, इस न्यूट्रिशन के मेथड में जो एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है, सिंपल ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपने अतराफ से जो है वो जस्ट करने के मेथड से फूड हासिल करते हैं. तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो इस कैटेगरी में शामिल हैं? सो योर करेक्ट ऑप्शन इज़ डी. डी ऑप्शन इज़ करेक्ट, फंगी. And what is fungi? Fungi are those organisms which do not prepare their own food because they do not have chloroplast or chlorophyll in them, so they have absorptive mode of nutrition. Now come to the sixth one. Similar cells organized into groups and performing same function are known as. एक जैसे सेल यानी जो शेप साइज़ के लिहाज से एक जैसे होते हैं, जब वो ग्रुप्स की शक्ल में अपने आप को अरेंज करते हैं तो एक ही फंक्शन से जो है वो रिलेट हो जाते हैं या एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं. तो जब एक जैसे सेल्स ग्रुप में एक जैसे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो तो वो क्या बनाते हैं, क्या कहलाते हैं? दे आर नोन एज टिश्यू बिकॉज सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ देयर कॉमन फंक्शन बिकम और फॉर्म टिश्यू लेवल. So they form tissue. Now come to the number 7 MCQ. Which of these tissues also makes the glandular tissue in animals? इनमें से कौन से tissues animals में glandular tissues बनाते हैं? So the correct option is epithelial tissue, because epithelial tissue not only contain the glands in them, and these glands जिन्हें आप उर्दू में गुदूद कहते हैं actually involved in different secretion. So that's why glandular tissues are also called the epithelial tissues, and these tissues are involved in different or making different secretions. Now number 8, the level of organization that is less definite in plant is. वो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का वो लेवल या वो दर्जा या वो सतह जो कि प्लांट्स में हमें कम नज़र आती है, प्लांट्स में बहुत महदूद होती है, यानी ना होने के बराबर होती है, वो कौन सा लेवल है या कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? सो दैट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ द ऑप्शन सी, ऑर्गन सिस्टम लेवल. बिकॉज ऑर्गन सिस्टम लेवल में को अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करें तो एनिमल्स में ये लेवल जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, जबकि प्लांट्स में क्यों इतना लेस डेफिनेट या लेस कॉम्प्लिकेटेड आप कह सकते हैं, या लेस डेफिनेट का मतलब यहाँ पर है कि बहुत महदूद पाया जाता है, क्योंकि प्लांट्स में इतना ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी रेंज नहीं होता. प्लांट्स अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, लिहाजा उनमें इतने ज़्यादा ऑर्गन सिस्टम जो है वो काम नहीं करते, सिवाय ये कि एक सिस्टम इनका जो ज़मीन के नीचे होता है वो रूट सिस्टम कहलाता है, और एक ज़मीन के ऊपर होता है जिसे हम शूट सिस्टम का कहते हैं, जिसमें हम सारे पौधों के जो पत्ते, फूल, बर्ड्स, कलियाँ वगैरह ये शामिल होती हैं. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्लांट्स में ये लेस डेफिनेट होता है, जबकि एनिमल्स में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, लेवल होता है. अब एनिमल्स में क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि एनिमल्स में एक जगह से दूसरी जगह करने की एबिलिटी होती है,
इनमें डिफरेंट जो सिस्टम्स होते हैं जैसे नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं, जबकि यहाँ पर बहुत ही कम लिमिटेड सिस्टम्स होते हैं जिससे प्लांट अपने ज़िंदगी के तमाम काम अंजाम देता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट MCQ नंबर 9, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स के बारे में इसमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको सही नज़र आ रही है? सो यू नो वेरी वेल, आपने पूरा एक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा लास्ट चैप्टर जो आपने कंप्लीट किया, उसमें वॉल्वॉक्स के बारे में पढ़ा। एंड व्हाट इज़ वॉल्वॉक्स? वॉल्वॉक्स इज़ द ग्रीन एल्गा विच इज़ एक्चुअली फाउंड इन द फ्रेश वाटर. So what type of organization normally is related to Volvox? So it is colonial eukaryote. Volvox क्या है? ये एक colonial eukaryote है. Now why we are saying colonial? Because Volvox makes a colony. 100 of Volvox make a colony. And along with it, eukaryotic word is referred to the Volvox because Volvox is a unicellular. Eukaryotic means that having proper nucleus. What is the meaning of यूकैरियोट? क्योंकि इसमें एक प्रॉपर न्यूक्लियस, एक डेफिनेट न्यूक्लियस भी मौजूद होता है. Now come to the last MCQ. When we study the feeding relationship among different animal species of a forest, at what level of organization we are studying? जब हम डिफरेंट एनिमल स्पीशीज़ के अंदर उनके फीडिंग रिलेशनशिप के बारे में पढ़ रहे होते हैं या उनके खुराक हासिल करने के जो एक ताल्लुक़ होता है, एक लिंक होता है, उसके बारे में हम पढ़ रहे होते हैं, और वो तमाम एनिमल्स कहाँ रहते हैं? इन अ फॉरेस्ट. सो दिस इज़ द मेन हिंट फॉर यू फॉर गेटिंग द आंसर, फॉर रीचिंग अप टू द आंसर. आपके पास ये हिंट है फॉरेस्ट. सो एट वॉट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वी आर स्टडिंग, हम किस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी करें. तो जैसे कि मैंने हिंट आपको बता दी कि फॉरेस्ट, तो इट मीन्स फॉरेस्ट कौन सा लेवल बना रहा है? फॉरेस्ट एक आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी. फॉरेस्ट किसकी एग्जांपल है? फॉरेस्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है. ये किसकी एग्जांपल में आता है? कॉम्प्लेक्स community. So in this way we can finally get to our answer, and the answer is community level. यानी कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम पढ़ रहे हैं? कम्युनिटी लेवल. तो ये आंसर हमें किस हिंट से पता चला? फॉरेस्ट से, बिकॉज फॉरेस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी. थैंक यू क्लास.